کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو اس وقت یہودی معاشرہ کیسا تھا؟ کیا سب لوگ ایک ہی طرح ایمان رکھتے تھے؟ کیا سب خدا، شریعت، ہیکل اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ایک جیسی سوچ رکھتے تھے؟ نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے زمانہ میں یہودی معاشرہ مختلف مذہبی، سیاسی اور فکری گروہوں میں تقسیم تھا۔ کچھ شریعت پر بہت زور دیتے تھے، کچھ ہیکل اور کہنوں کے نظام سے جڑے ہوئے تھے، کچھ دنیا سے الگ ہو کر پاکیزگی کی زندگی گزارنا چاہتے تھے، اور کچھ رومی حکومت کے خلاف آزادی کی جنگ چاہتے تھے۔ لیکن ان تمام اختلافات کے درمیان ایک حیرت انگیز حقیقت تھی کہ خدا کا منصوبہ نہیں بدلا تھا۔ لوگ مختلف راستے تلاش کر رہے تھے، لیکن خدا انسان کو ایک ہی راستہ دکھانے والا تھا، اور وہ راستہ تھا خداوند یسوع مسیح۔ ایلڈر مختار سجیل بھٹی کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایمبیسیڈر آف کرائسٹ چینل۔ اس چینل کا مقصد خدا کے کلام کو آسان الفاظ میں سمجھنا اور یہ دکھانا ہے کہ بائبل کی تاریخی، روحانی اور نجات کی کہانی ایک دوسرے سے کس طرح جڑی ہوئی ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ خدا کے کلام کو صرف پڑھا نہ جائے بلکہ سمجھا جائے، دل میں اتارا جائے اور زندگی میں عمل کیا جائے۔ اگر آپ خدا کے کلام کو گہرائی کے ساتھ لیکن آسان زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس سفر میں ضرور رہیں۔ آج ہمارے پیغام کا عنوان ہے دوسری ہیکل کے دور سے خداوند یسوع مسیح تک۔ عزیزو، آج ہم ایک ایسے تاریخی دور کو سمجھیں گے جسے کہا جاتا ہے دوسری ہیکل کا زمانہ، یعنی سیکنڈ ٹیمپل پیریڈ۔ یہ دور تقریباً 516 قبل از مسیح سے 70 عیسوی یعنی بعد از مسیح تک کا زمانہ تھا۔ اسی وسیع تاریخی دور کے آخری حصے میں خداوند یسوع مسیح کی پیدائش، خدمت، صلیب اور قیامت واقع ہوئی۔ ہماری آج کی گفتگو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان مختلف گروہوں، نظریات اور راستوں میں بٹ سکتا ہے، لیکن خدا کا نجات کا منصوبہ ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح میں مکمل ہوتا ہے۔ دوسری ہیکل کا زمانہ کیا تھا؟ عزیزو، جب بابل کی اسیری کے بعد یہودی واپس یروشلم آئے تو ہیکل دوبارہ تعمیر کی گئی۔ یہی ہیکل بعد میں سیکنڈ ٹیمپل یعنی دوسری ہیکل کہلائی۔ یہ زمانہ کئی صدیوں تک جاری رہا۔ بعد میں ہیرودیس اعظم نے ہیکل کے علاقے اور عمارت کو بہت بڑے پیمانے پر وسیع اور خوبصورت بنایا۔ یسوع کے زمانہ میں جس شاندار ہیکل کو لوگ دیکھتے تھے وہ اسی ہیرودی تعمیر کا حصہ تھی۔ لیکن یہاں ہمیں ایک روحانی سبق ملتا ہے۔ ایک خوبصورت ہیکل انسان کو خود بخود خدا کے قریب نہیں لاتی۔ عمارت بڑی ہو سکتی ہے، مذہبی نظام مضبوط ہو سکتا ہے،
रसूमात बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन खुदा इंसान के दिल को देखता है। खुदावंद यीशु मसीह ने बाद में हैकल के बारे में फरमाया, बामुताबिक मरकस 11 बाब की 17 आयत में यूँ मरकूम है, मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। उस ज़माना में मुख्तलिफ ग्रोह क्यों पैदा हुए? दूसरी हैकल के दौर में यहूदी मुआशरे में मुख्तलिफ ग्रोह और नज़रियात पैदा हुए। उनमें ख़ास तौर पर फरीसी, सदूकी, असीनी, ज़ैलूत और हेरोदी सियासी हामी जैसे ग्रोह अहम थे। कदीम मौरख जोसेफस भी फरीसियों, सदूकियों और असीनियों का ज़िक्र करता है, और जदीद तारीख़ी तहकीक में भी ये ग्रोह सेकंड टेम्पल जुडाइज़म को समझने के लिए बहुत अहम समझे जाते हैं। अब ज़रा एक एक करके समझते हैं। फरीसी शरीयत और मजहबी ज़िंदगी पर बहुत ज़ोर देते थे। वो तौरात के साथ रवायती तशरीहात को भी अहम समझते थे। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना में फरीसी अवाम में ख़ास मजहबी असर रखते थे, लेकिन मसला ये था कि कभी कभी शरीयत का मकसद दिल की तब्दीली की बजाय ज़ाहरी मज़हब बन जाता था। बामुताबिक मत्ती 23 बाब की 25 आयत में यीशु ने फरीसियों से कहा, तुम बाहर से तो प्याले और रकाबी को साफ करते हो, लेकिन अंदर से वो लूट और बदकारी से भरे हैं। अजीज़ों, ये बड़ा सबक है। खुदा सिर्फ ये नहीं देखता कि हम बाहर से कितने मजहबी नज़र आते हैं, खुदा ये देखता है कि हमारे दिल के अंदर क्या है। हम आज भी इसी ख़तरे में पढ़ सकते हैं। हम दुआ कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, मजहबी अल्फाज बोल सकते हैं, लेकिन अगर दिल खुदा से दूर है तो ज़ाहरी मज़हब हमें नजात नहीं दे सकता। अब सवाल ये है कि आज हमारे लिए इसमें क्या सबक है। अब आते हैं एक दूसरे ग्रोह की तरफ, सदूकी। दूसरा अहम ग्रोह सदूकियों का था। वो ज़्यादातर कहनाना और अशराफी तबके से वाबस्ता थे और हैकल के निज़ाम में उनका बड़ा असर था। नए अहदनामा में उनका एक नुमायाँ अकीदा सामने आता है। वो क़यामत पर ईमान नहीं रखते थे। इसीलिए जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास क़यामत के बारे में सवाल लेकर आए तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, बामुताबिक मत्ती 22 बाब की 29 आयत में यीशु मसीह ने जवाब में उनसे कहा कि तुम गुमराह हो, इसलिए कि ना किताब मुक़द्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को। अजीज़ों, कितनी गहरी बात है। इंसान के पास मजहबी इल्म हो सकता है, लेकिन फिर भी वो खुदा की कुदरत को नहीं पहचान सकता। भाइयों, हमें सिर्फ मालूमात नहीं चाहिए, हमें खुदा को जानना चाहिए। अब सवाल ये है कि आज हमारे लिए इसमें क्या सबक है। अब एक दूसरे ग्रोह की तरफ चलते हैं, असीनी। ये लोग पाकीज़गी और मजहबी ज़िंदगी को बहुत संजीदगी से लेते थे और बाज़ ग्रोह मुआशरे से अलग होकर रहते थे। बहेरे मुर्दार के करीब कमरान से मिलने वाले डेड सी स्क्रोल्स ने सेकंड टेम्पल जुडाइज़म के बाज़ मजहबी ग्रोहों और उस ज़माना के फ़िक्री माहौल को समझने में बहुत अहम मालूमात फ़राहम की हैं।
تاہم یہ کہنا زیادہ محتاط ہے کہ قمران کے لوگ لازماً تمام اسینی ہی تھے۔ عزیزو، یہ ایک عملی بحث ہے، لیکن یہاں بھی ایک روحانی سبق ہے۔ صرف دنیا سے الگ ہو جانا انسان کو نجات نہیں دیتا۔ عزیزو، پاکیزگی ضروری ہے، خدا سے وفاداری ضروری ہے، لیکن انسان کو آخر کار خدا کے فضل اور نجات کی ضرورت ہے، اور وہ نجات خداوند یسوع مسیح میں ہے۔ بھائیو، آج سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ یاد رہے کہ بائبل میں اسینی گروہ کا نام براہ راست نہیں آتا، اس لیے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بائبل نے اسینی کا نام لیا ہے، بلکہ درست بات یہ ہے کہ دوسری ہیکل کے زمانہ کے تاریخی ذرائع ہمیں اسینی نام ایک یہودی گروہ کے بارے میں بتاتے ہیں، لیکن بائبل میں ان کا نام براہ راست درج نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں ایک دوسرے گروہ کی طرف، زیلوت۔ پھر ایسے لوگ بھی تھے جو رومی حکومت سے سخت نفرت کرتے تھے اور آزادی چاہتے تھے۔ انہیں عام طور پر زیلوت کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے بڑا سوال یہ تھا کہ رومی حکومت سے کیسے آزاد ہوں۔ بامطابق لوکا 6 باب کی 15 آیت اور اعمال 1 باب کی 13 آیات میں خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک شمعون، جو زیلوتس کہلاتا تھا۔ عزیزو، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہودی لوگ ایک غیر ملکی طاقت کے زیر حکومت تھے۔ وہ ایک ایسے مسیحا کی امید بھی رکھتے تھے جو انہیں آزاد کرے، لیکن بہت سے لوگوں کے ذہن میں آزادی کا مطلب تھا رومی حکومت سے سیاسی آزادی، جبکہ خداوند یسوع مسیح جس بادشاہی کی منادی کر رہے تھے وہ اس سے کہیں بڑی تھی۔ بامطابق یوحنا 18 باب کی 36 آیت میں خداوند نے فرمایا، یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ عزیزو، کیونکہ خداوند یسوع مسیح صرف روم سے آزادی دینے نہیں آئے تھے، وہ انسانوں کو گناہ، موت اور شیطان کی غلامی سے آزاد کرنے آئے تھے۔ یہ فرق بہت بڑا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ایک اور گروہ کی طرف چلتے ہیں، ہیرودی اور سیاسی طاقت۔ عزیزو، نئے عہد نامہ میں ہمیں ہیرودیوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ یہ لوگ ہیرودیس کے خاندان کی سیاسی جماعت سے وابستہ سمجھے جاتے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف مختلف مفادات رکھنے والے لوگ بھی بعض اوقات ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ مثلاً بامطابق مرکز 3 باب کی 6 آیت میں، پھر فریسی فی الفور باہر جا کر ہیرودیوں کے ساتھ اس کے خلاف مشورہ کرنے لگے کہ اسے کس طرح ہلاک کریں۔ عزیزو، یہ آیت ہمیں ایک حقیقت دکھاتی ہے۔ جب انسان مسیح کو قبول نہیں کرنا چاہتا تو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ بھی اس کے خلاف متحد ہو سکتے ہیں، لیکن انسان کا منصوبہ خدا کے منصوبے کو ختم نہیں کر سکتا۔ فیلو آف الیگزینڈریا اینڈ جوزفس۔ بھائیو، اس زمانے کو سمجھنے کے لیے صرف بائبل ہی نہیں بلکہ قدیم تاریخی ذرائع بھی ہمارے لیے مددگار ہیں۔ فیلو آف الیگزینڈریا ایک یہودی فلسفی اور مصنف تھا جس نے یہودی ایمان کو
यूनानी फ़लसफ़े और अपने ज़माने की फ़िक्री दुनिया के साथ बयान करने की कोशिश की। दूसरी तरफ फ्लेवियस योसेफस एक यहूदी मौरख था जिसकी तहरीरें पहली सदी के यहूदिया, उसके लोगों, सियासी हालात और मजहबी ग्रोहों के बारे में अहम तारीखी मालूमात फराहम करती हैं। जदीद स्कॉलरशिप भी जोसेफस को सेकंड टेम्पल जुडाइज़्म के मतालिया में एक अहम ज़रिया समझती है। लेकिन यहाँ एक बात याद रखें, तारीख़ हमें पस मंज़र समझाती है लेकिन नजात नहीं देती। जोसेफस हमें तारीख़ समझने में मदद दे सकता है, फ़िलो हमें उस ज़माने की फ़िक्री दुनिया समझने में मदद दे सकता है, लेकिन गुनाह से नजात सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह दे सकते हैं। अजीज़ों, फिर खुदावंद यीशु मसीह आए। अब ज़रा पूरे मंज़र को अपने सामने रखें। एक तरफ फरीसी थे, दूसरी तरफ सदूकी थे, कहीं असीनी थे, कहीं सियासी मज़ामत थी, रूमी हुकूमत मौजूद थी, हेरोदीस की सियासत थी, यूनानी सकाफ़त का असर था, लोग मसीहा के मुंतज़िर थे। और इसी तारीख़ी माहौल में खुदावंद यीशु मसीह आए। ये इत्तफ़ाक़ नहीं था। पौलुस रसूल कहते हैं बामुताबिक गलीतियों 4 बाब की 4 आयत में, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। अजीज़ों, ये आयत हमारे पूरे पैगाम का मरकज़ है। खुदा देर नहीं कर रहा था, खुदा का मंसूबा पहले ही मुकर्रर था। खुदावंद यीशु मसीह ने कोई नया ग्रोह नहीं बनाया। ये बात बहुत अहम है। खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में एक नया सियासी ग्रोह बनाने नहीं आए। वो सिर्फ फरीसियों को दुरुस्त करने नहीं आए, वो सिर्फ सदूकियों से बहस करने नहीं आए, वो सिर्फ रोम के ख़िलाफ़ इनकलाब लाने नहीं आए, वो इंसान के दिल को बदलने आए। बामुताबिक लूका 17 बाब की 21 आयत में यूं मरकूम है, खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है। अजीज़ों, वो बादशाही लेकर आए जो तलवार से नहीं बल्कि सच्चाई, फजल और रूल कुदस से कायम होती है। हैकल का एक बड़ा राज। खुदावंद यीशु मसीह के ज़माना में हैकल इंतहाई अहम था। कुर्बानियाँ होती थीं, काहन खिदमत करते थे, लोग खुदा की हजूरी की तरफ आते थे। लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने एक हैरत अंगेज़ बात कही। बामुताबिक यूहन्ना 2 बाब की 19 आयत में यूं मरकूम है, इस हैकल को ढा दो तो मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। अजीज़ों, यूहन्ना बताते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपने बदन के हैकल के बारे में कह रहे थे। यहाँ से हमें एक बहुत गहरी बात समझ आती है। अजीज़ों, पुराने अहद का हैकल खुदा की हजूरी की तरफ इशारा करता था, लेकिन मसीह खुद खुदा की हजूरी का मुकम्मल ज़हूर हैं। बामुताबिक यूहन्ना 1 बाब की 14 आयत में लिखा है, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। सन 70 ईस्वी से हैकल की तबाही। यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत के तकरीबन 40 साल बाद सन 70 ईस्वी में रूमी फ़ौज ने यरूशलेम को फ़तह किया और सेकंड टेम्पल यानी दूसरी हैकल को तबाह कर दिया। यीशु मसीह उस तबाही की पेशन गोई भी कर चुके थे।
बामुताबिक मत्ती 24 बाब की 2 आयत में यूं मरकूम है, यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर बाकी न रहेगा जो गिराया न जाएगा। ये वाक़या हमें दोबारा एक बड़े सबक की तरफ ले जाता है। इमारतें ख़त्म हो सकती हैं, सियासी ताकतें ख़त्म हो सकती हैं, मजहबी निज़ाम बदल सकते हैं, इंसानी गिरोह ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कायम रहता है। बामुताबिक मत्ती 24 बाब की 35 आयत में यूं मरकूम है, आसमान और ज़मीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। अजीज़ों, हमारे लिए असल पैगाम क्या है? अब सवाल ये नहीं कि दूसरी हैकल के दौर में फरीसी कौन थे, या सदूकी क्या मानते थे, या ज़ेलूत किसके ख़िलाफ़ थे। ये सब तारीख़ी मालूमात अहम हैं, लेकिन असल सवाल ये है, आज हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह कौन है? क्या वो सिर्फ़ एक तारीख़ी शख्सियत हैं? क्या वो सिर्फ़ एक नबी हैं? क्या वो सिर्फ़ एक उस्ताद हैं? या वो हमारे नजात दहिंदा और खुदाबंद हैं? क्योंकि 2000 साल पहले भी लोग खुदावंद यीशु मसीह के सामने खड़े हुए थे और उन्हें फ़ैसला करना पड़ा था, और आज हमें भी फ़ैसला करना है। अजीज़ों, हमारे लिए आखिरी पैगाम, मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, दूसरी हैकल का दौर हमें एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो मजहबी, सियासी और फ़िक्री इख्तलाफात से भरी हुई थी, लेकिन अपने अपने नज़रियात के साथ खड़े थे। लेकिन खुदा खामोश नहीं था। खुदा अपना मंसूबा पूरा कर रहा था। वक्त आया, खुदावंद यीशु मसीह आए, उन्होंने खुशखबरी सुनाई, बीमारों को शफा दी, गुनाह माफ़ किए, मुर्दों को ज़िंदा किया, सलीब पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठे। क्यों? ताकि इंसान खुदा के साथ सुलह कर सके। बामुताबिक पहला पतरस 3 बाब की 18 आयत में पतरस रसूल कहते हैं, मसीह ने भी एक बार गुनाहों के लिए दुख उठाया, यानी रास्तबाज ने नारास्तों के लिए, ताकि हमें खुदा तक पहुँचाए। अजीज़ों, यही हमारे पूरे पैगाम का मरकज़ है। बहुत से गिरोह थे, बहुत से नज़रियात थे, बहुत सी आवाज़ें थीं, लेकिन नजात का रास्ता एक ही है, यानी खुदावंद यीशु मसीह। आएं दुआ करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि जब वक्त की मामूरी हुई तो तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में भेजा। खुदावंद हमें अपने सिर्फ़ तारीख़ी मालूमात हासिल करने वाले नहीं, बल्कि अपने कलाम पर अमल करने वाले बना। हमें ज़ाहरी मज़हब से निकाल कर हकीकी ईमान अता कर। हमें इंसानी नज़रियात से ज़्यादा मसीह को जानने की ख्वाहिश दे, और हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को वाकई अपना खुदावंद और नजात दहिंदा बनाने की तौफीक दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।